Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Judiciary. And under this chapter we were doing the structure of the courts in India, as we have seen that it is pyramidal. At the lower level there are lower courts, which are also called district courts and subordinate courts, and these lower courts are under the supervision of the court at the state level, that is High Court, and at the apex there is Supreme Court. So one court, the court for the whole of the country is Supreme Court, and then the country is divided into different states, and for each state there are high courts, and then each state is again divided into different districts, and in each district there are district courts. These district courts are headed by the district judge. So we were discussing that the judiciary, the structure of judiciary is integrated. Integrated means whatever decisions are taken by higher courts, whatever judgments are taken by higher courts, these are binding on the lower courts, है ना. या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि there is because of this integrated judiciary, what happens that appellate system exists in India. It means that a person can appeal to a higher court if he or she believe that the judgment passed by the lower court is not just, है ना. तो वो अपील कर सकता है. जब अगर लोअर कोर्ट से अपील हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी. ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस appellate system, what do we mean by this appellate system? We need to understand. We will understand it by taking a case. The case was State versus Lakshman Kumar and others. ये स्टेट कौन सी थी? दिल्ली की के बारे में हो रही है, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. State versus Lakshman Kumar and others. Okay. This is the year of the case. Okay. So what happened that in February 1980, Lakshman Kumar he married a 20-year-old girl, Sudha Goyal. Okay, Lakshman is the husband and Sudha Goyal, she was the wife of Lakshman. Their marriage took place in February 1980. Okay, and then Sudha lived in a they both of them lived in a flat in Delhi with Lakshman's brother and their families. ठीक है. सुधा जो है वो लक्ष्मण के ब्रदर और उसकी फैमिली के साथ रहती थी उसके फ्लैट में. 2 दिसंबर 1980 को क्या हुआ? इसी साल, जिस साल उनकी शादी हुई उसी साल की 2 दिसंबर 1980 को सुधा जो है उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, बर्न्स के कारण जल जाती है वो, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है. देन हर फैमिली फाइल्ड अ केस इन अ कोर्ट, है ना. व्हेन दिस केस वाज हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट, 4 of her neighbors were called in as witness. ओके, तो सुधा गोयल के फादर ने केस कर दिया. केस ये कहा गया ये लोअर कोर्ट में केस. सबसे पहले हम लोअर कोर्ट में ही जाएंगे ऐसे केसेस में. तो जब लोअर कोर्ट में केस चल रही थी तो कोर्ट बुलाते हैं ना बहुत लोगों को विटनेस के लिए. तो जो सुधा गोयल के नेबर थे उन 4 नेबर्स को विटनेस के लिए बुलाया गया और उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर की नाइट को क्या हुआ था कि उन्होंने सुधा की चीखने की आवाज़ सुनी थी. दे हैड हर्ड सुधा स्क्रीमिंग
and then when they heard that Sudha is screaming, they forced themselves inside the Lakshman flat, and there they saw that Sudha स्टैंडिंग विथ हर साड़ी इन फ्लेम, ठीक है, उसकी साड़ी में पूरी की पूरी फ्लेम लगी हुई थी, और तब उन्होंने उस फायर उसकी साड़ी में जो फायर लगी थी उसको एक्सटिंग्विश किया। कैसे उसको बुझाया? सुधा को एक गनी बैग में रैप करके, एक ब्लैंकेट में रैप करके सुधा के जो आग लगी थी उसको वो बुझाया। देन सुधा जो है उसने उस समय ही उनको कहा, नेबर्स को, दैट हर मदर इन लॉ शकुंतला, मदर इन लॉ जिनका नाम शकुंतला था, उन्होंने उनके ऊपर केरोसिन डाला था सुधा के ऊपर, और उसका हस्बैंड लक्ष्मण जो है उन्होंने उस पर आग लगाई थी, ठीक है। दिस वाज द सिचुएशन। तो ट्रायल जब हुआ सबऑर्डिनेट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, तो सुधा के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे और नेबर्स थे, उनका यही कहना था कि सुधा पर टॉर्चर किया जाता था। उसके जो इन लॉज थे वो उस पर बहुत बुरी तरह से उसका टॉर्चर करते थे, और उससे वो कैश मांग रहे थे, डाउरी, है ना। शादी के बाद भी वो और भी कैश मांग रहे थे। स्कूटर की भी उनकी डिमांड थी, फ्रिज की डिमांड थी, है ना। जब उनके पहले बच्चे का बर्थ हुआ सुधा के, तो उस पर उन लोगों ने ये सारे डिमांड्स रखे थे। और इसमें लक्ष्मण और उसके मदर का कहना था कि सुधा की जो साड़ी थी वो बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली उसमें फायर लग रही थी जब वो दूध गर्म कर रही थी बच्चे के लिए, ठीक है। तो इस तरह का दोनों ही साइड जो है वो अपने अपने बातों को रखते हैं, है ना। सुधा की जो फैमिली वाले हैं वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सुधा को उसके इन लॉज ने मारा है, नेबर्स भी यही बात कह रहे हैं। बट जो सुधा के लक्ष्मण के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ये कहना है कि नहीं, सुधा की अगर जान गई तो वो एक एक्सीडेंट था, है ना। अब इन सब बेसिस और एविडेंस के बेसिस पे ट्रायल कोर्ट जो थी, ट्रायल कोर्ट में सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसने क्या कहा कि लक्ष्मण जो है वो कन्विक्ट है, लक्ष्मण ने क्राइम किया है ना। और उसकी मदर और उसके ब्रदर इन लॉ, इन तीनों को लाइफ सेंटेंस देम टू डेथ, मतलब उम्र कैद की सजा जिसको कहते हैं वो दे दिया, ठीक है। तो ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट यही लिया कि लक्ष्मण जो है वो कल्प्रिट है, उसने गलत काम किया है, उसने क्राइम किया है, और इस कारण से लक्ष्मण, उसकी मदर और उसके भाई, लक्ष्मण के भाई, तीनों को उम्र कैद की सजा दी गई। फिर क्या हुआ कि ये जो वर्डिक्ट आया लोअर कोर्ट का, ये वर्डिक्ट लक्ष्मण के अगेंस्ट था, सुधा के फेवर में था। तो अब लक्ष्मण की जो फैमिली वाले थे तीनों, लक्ष्मण का ब्रदर और लक्ष्मण की मदर, इन तीनों ने हाई कोर्ट में अपील की, ठीक है। हाई कोर्ट में अपील किस लिए की? क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट ने भी सारे आर्ग्यूमेंट सुने, विटनेसेस को सुने। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि सुधा जो है वो एक्सीडेंटल फायर से उसकी डेथ हुई थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के डिसीजन को पलटते हुए ये कह दिया कि लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष जो है उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर सुधा को आग लगी, वो उसकी डेथ हुई आग से, तो वो एक्सीडेंट था। अब क्या होता है कि इन सब के बाद हम ये देखते हैं कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाते हैं सुधा के फैमिली मेंबर्स, है ना। लोअर कोर्ट में जो जजमेंट आया वो सुधा के फेवर में आया था, ठीक है, कि सुधा को मारा गया था। तो लक्ष्मण को कन्विक्ट किया गया, लक्ष्मण के ब्रदर और लक्ष्मण की मदर को। तब इस लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट लक्ष्मण और उसके भाई और मदर ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने सुधा को कहा कि वो एक्सीडेंटल डेथ था, लक्ष्मण को और उसके भाई को और उसके मदर को उसने एक्विट कर दिया। अब इस जजमेंट के अगेंस्ट सुधा के जो पेरेंट्स थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे, उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट में अपील किया 1985 में। और इस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर से सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुने, लॉयर्स के विटनेसेस सारे सुने, और तब सुप्रीम कोर्ट जो था उसका जो डिसीजन था वो ये था कि हाई कोर्ट से वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण और उसकी मदर जो है वो गिल्टी है, ये दोनों, लक्ष्मण एंड हिज मदर। बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके ब्रदर इन लॉ को एक्विट कर दिया, छोड़ दिया कि वो कल्प्रिट नहीं है ना, बिकॉज उसके अगेंस्ट ज़्यादा एविडेंस नहीं थे। एविडेंस लक्ष्मण और उसकी मदर के अगेंस्ट था, तो उनको कन्विक्ट किया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और उसकी मदर को उम्र कैद की सजा दे दी। तो ये क्या है? दिस इज एपेलेट
सिस्टम कि नीचे के कोर्ट्स जो भी डिसीजन देते हैं उसके अगेंस्ट हम ऊपर के कोर्ट्स में अपील कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द ये अपलेट सिस्टम आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आ रहे हैं, दैट इज डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। हमारी जो लीगल सिस्टम है उसके बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक है। कौन कौन से वो ब्रांच है? मेनली देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ आवर लीगल सिस्टम, दैट इज क्रिमिनल एंड सिविल लॉ, ठीक है। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ओके, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ की जब भी बात होती है तो उसमें ये होता है कि जैसे कोई इस तरह का एक्ट जो कि लॉ के अगेंस्ट का हो रहा है ना। जैसे कि चोरी हो रही है, किसी को हरास किया जा रहा है ना। किसी वुमेन पे किसी औरत को ये कहा जा रहा है कि उसे और भी ज़्यादा डाउरी लानी चाहिए, ये भी क्रिमिनल लॉ में ही आता है। मर्डर हो रहा है तो दीज आर क्रिमिनल लॉ, ठीक है। अब सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ के अंदर हम क्या कहते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि जैसे लोगों की जो राइट्स हैं उसको किसी तरह से हार्म किया जा रहा है ना। लाइक कोई लैंड की सेलिंग को लेकर के डिस्प्यूट है ना। किसी सामान के परचेज को लेकर के, रेंट को लेकर के, डाइवोर्स के केसेस हैं, ये सिविल लॉ में आते हैं। सिविल लॉ में जो आते हैं वो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं जिससे कि कोई लॉ को के अगेंस्ट जो काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे ज़मीन जायदाद के मैटर हैं, डाउरी का मैटर है, डाउरी नहीं, डाइवोर्स का मैटर है, ज़मीन जायदाद का मैटर है, डाइवोर्स का मैटर है, रेंट का मैटर है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें किसी भी तरह का लॉ का ब्रेकिंग नहीं हो रहा है। जब क्रिमिनल लॉ हम कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसा एक्ट या कंडक्ट जहाँ पे लॉ जो है उसको ऑफेंस, लॉ के हिसाब से वो गलत है, लॉ के हिसाब से आपने लॉ को ब्रेक किया है ना, तो उसको हम क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और सिविल लॉ जो होती है उसमें इसी तरह के मैटर्स होते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अगर कोई सिविल लॉ है तो सिविल मैटर में एक पेटिशन फाइल की जाती है। पेटिशन का मतलब शिकायत हम कह सकते हैं उसको, कंप्लेन, ठीक है। एक पेटिशन फाइल की जाती है पर्टिकुलर कोर्ट के में। मान लो अगर डाइवोर्स का मैटर है तो जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर ये मैटर जाएगा। कौन ले जाएगा इस मैटर को? जो भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, जो वाइफ हस्बैंड जो कपल हैं, दे विल फाइल अ पेटिशन इन द फैमिली कोर्ट, है ना। तो जो अफेक्टेड पार्टी है वो अपने रेलिवेंट कोर्ट के सामने पेटिशन फाइल करते हैं, ठीक है। अगर रेंट का मैटर है तो जो लैंडलॉर्ड है या टेनेंट है वो दोनों में से कोई भी फाइल कर सकते हैं केस को, डायरेक्ट कोर्ट में वो जाते हैं। लेकिन अगर क्रिमिनल केस है जहाँ पर कि हम देख रहे हैं कि किसी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो सबसे पहले वहाँ क्या होता है, एक FIR लॉन्च की जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। और फिर FIR के बाद क्या होता है कि पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट फाइल करती है। फिर जा कर के वो चार्जशीट जो है वो कोर्ट में जमा करती है, तब वो मैटर कोर्ट में जाता है। और यहाँ हमने क्या देखा, सिविल लॉ में वो डायरेक्ट कोर्ट में चली जाती है, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ में एक चीज़ और होती है कि अगर कोई गिल्टी होता है, ये पता चलता है कि हाँ उसने ये ऐसा किया है, क्राइम किया है, तो उसमें क्या होगा, एक्यूज्ड को जेल भी भेजा जा सकता है और फाइन भी लिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है कि जो कोर्ट होती है ना वो एक स्पेसिफिक मतलब तरीका बताती है कि जो सिचुएशन है, जो डिस्प्यूट है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। सपोज जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रेंट का मैटर है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट है, उनके बीच में रेंट को लेकर डिस्प्यूट है, तो उसमें कोर्ट क्या कहेगी, कोर्ट ये किसी को सज़ा नहीं देगी कि 1 साल की सज़ा या 2 साल की, या फाइन भी नहीं देगी। कोर्ट ये कहेगी कि जो फ्लैट है उसको वेकेट कर दिया जाए, जो टेनेंट है वो उस फ्लैट को छोड़ दें और जो भी पेंडिंग रेंट उनका बनता है वो उसको लैंडलॉर्ड को दे दें, है ना। तो इस तरह से ये क्रिमिनल और सिविल लॉज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके,
अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा सेगमेंट है, एंड दैट इज डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? Does everyone have व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि ठीक है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर सिटीज़न के लिए ये राइट उसको देता है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं, है ना। एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट्स। अगर हमारे साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस हो रहा है तो हमें ये राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी देखा है, पहले हमने इस चीज़ को पढ़ा कि जो कोर्ट है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि कोर्ट्स को क्या बनाया गया है? फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर बनाया गया है। किसी भी सिटीजन के अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है, चाहे वो कोई भी वायलेशन कर रहा हो, गवर्नमेंट ही क्यों ना वायलेशन कर रही हो, दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस टू बी डन, है ना। In case of any kind of violation of fundamental right, each and every citizen has right to approach to the court. Okay, and courts are available for all. This is in theory. Okay, but in reality, what we find that the access to court is not so easy for majority of the people who are poor, who are illiterate. It is not easy to access the courts, है ना। The legal procedure in our country, it's a very complex procedure. A person who is not having knowledge, a person who is poor, he will really cannot afford to go to the courts and fight फॉर जस्टिस, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है जिसमें बहुत सारे मनी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ आपको अपना अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप इलिटरेट हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मूर्ख भी बनाया जा सकता है जो सिस्टम प्रिवेल कर रही है रियलिटी में। एक पुअर पर्सन के लिए, एक इलिटरेट पर्सन के लिए, और एक ऐसे फैमिली के लिए जो कि डेली वेजेस पे डिपेंड करती है, जो हर दिन कमाता है और खाता है ना। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज होते हैं जिनके पास कुछ भी जमा नहीं होता है, जो हर दिन वो कमाते हैं वही वो हर दिन खाते हैं। ऐसी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है कोर्ट में जाना, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जिस टाइम में वो जाकर के अपनी लाइवलीहुड अर्न करते हैं उस टाइम में वो उनको कोर्ट में देना पड़ेगा। तो फिर हाउ विल दे सर्वाइव? दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। टू सर्वाइवल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गेटिंग जस्टिस ना। तो दिस इज द रीज़न। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन टू गेट जस्टिस, टू हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स, है ना। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक नया सिस्टम इवॉल्व किया गया हमारी कंट्री में, दैट इज इन 1980s में, दैट इज कॉल्ड PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिवाइस किया, स्टार्ट किया। इसका ये मतलब होता है कि सपोज कोई इंडिविजुअल है ना, या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके साथ बहुत एट्रोसिटी हो रही है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बट दे आर सो पुअर, दे आर सो इलिटरेट दैट दे कैन नॉट, दे डोंट हैव दैट मच ऑफ करेज, that much of strength कि they can raise their voice against this exploitation, against this violation of fundamental rights, and वो उसको झेलते रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अगर हम 1980s के पहले तक की सिचुएशन को देखें तो हमारे यहाँ ये सिस्टम था कि जो विक्टिम है वही केस फाइल कर सकता है ना। जो विक्टिम है, अगर हमारे साथ एट्रोसिटी हो रही है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो सिर्फ हम ही उसके लिए काम करेंगे, उसके लिए हम ही को कंप्लेन करनी होगी, है ना। लेकिन
अब क्या हो गया, जब से ये 1980s में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंट्रोड्यूस किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये हो गया कि किसी भी के साथ अगर किसी भी तरह की इनजस्टिस हो रही है तो उसके बिहाफ में कोई दूसरा इंडिविजुअल या कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन आगे आ सकता है, कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसको एक बार में समझ लेने से ज़्यादा आसान होगा, ये बहुत ही इजी है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब होता है केस, ऐसा केस जो पब्लिक के इंटरेस्ट में किया गया है। हम अपने लिए केस फाइल नहीं कर रहे, हम अपने लिए पिटीशन फाइल नहीं कर रहे, बल्कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में हमने ये लिटिगेशन फाइल किया है। So this is all for today. We will continue with this in the next class.